Good morning, students. Students, today I am here with a new topic, packaging of DNA helix. Now, students, before starting it, I just want to recall you one thing that in the previous video we discussed about the double helical structure of the DNA. And I told you that we can calculate the length of the DNA with the help of the counting of the number of base pairs present on it. I am giving you an example. Since we know that human beings have 6.6 into 10 to the power 9 base pair in a normal mammalian cell, so as we know that the distance between two consecutive base pairs in a particular DNA is approximately 0.34 nanometer, or we can say that 0.34 into 10 to the power minus 9 meter. So students, if we will multiply 6.6 into 10 to the power 9 by 0.34 into 10 to the power minus 9, तो definitely we will get the actual length of the DNA. ठीक है. So if we are going to multiply it, तो value comes approximately 2.2 meters. So very easily we can find out, or we can calculate what is the actual length of the DNA in human beings. I have one question for you. I want to tell you that the nucleus inside which the DNA is present in human beings, its diameter is approximately 10 to the power minus 6 meter. ठीक है. And the length of DNA is 2.2 meter. Now if you will make a comparison, you will find out that the nucleus is very much smaller than the length of the DNA. तो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट कि इतना लंबा डीएनए इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर फिट कैसे होता है, इसकी पैकेजिंग कैसे होती है. सो दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. So for the packaging concept, there are two different concepts are there in prokaryotes as well as the eukaryotes. Now one by one I will discuss with you. In prokaryotes, like Escherichia coli, which is a bacteria, we all know that there is no well defined nucleus. So instead of nucleus, actually they have some positively charged proteins, and you must have to remember one thing, that the DNA is always negatively charged. So what happens in case of prokaryotes, the negatively charged DNA wraps around the positively charged proteins and forms some loop like structure, which finally forms a specific structure, and this specific structure is called as nucleoid. So in the form of the nucleoid, where the DNA is wrapping around the positively charged protein, is called as nucleoid. ठीक है. While in case of the eukaryotes, the structure is quite complex. Now what complexity is there, I am going to tell you that since in eukaryotic organisms the nucleus is present, well defined nucleus is present, and the DNA is located inside the well defined nucleus. Now how it fits under the nucleus, or very small nucleus, I am going to tell you that. Now inside the nucleus there are some specific kind of proteins, and these specific proteins are very highly charged. ठीक है. Highly charged, and which kind of charge they have positive charge. ठीक है. Now how the positive charge comes with these proteins, I am going to tell you that. Now what are proteins? Initial thing, proteins are the complex structures which is made up of अमीनो एसिड्स. यानी प्रोटीन क्या है? एक स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो कई सारे अमीनो एसिड्स के जुड़ने से बनता है. नाउ द अमीनो एसिड्स like lysine or the amino acid like arginine, ठीक है, which are very positively charged. Why these are positively charged, these amino acids? Because their side chains are very positively charged. तो highly positively charged जो amino acids हैं, lysine और arginine, ये अमीनो एसिड मिलकर के स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं. इन प्रोटीन्स, दैन दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड HISTONE, हिस्टोन प्रोटीन्स. तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं ये हाईली चार्ज होती हैं, और ऐसी ही 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामेयर. ठीक है, एक हिस्टोन ऑक्टामेयर बना लेती हैं, और इस हिस्टोन ऑक्टामेयर को अब रैप कौन करता है? डीएनए रैप करता है, और इस तरह से उसकी रैपिंग होती है, उस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स दैट आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन. Both of these amino acids carry positive charges on their side chains. So histones are a set of positively charged proteins
These histones organize themselves to make a unit of 8 molecules which is known as histone octamer. ठीक. Now the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer. अब जो DNA है वो negatively charged है and histone octamer है वो highly positively charged है. तो negatively charged DNA रैप अराउंड करना स्टार्ट करता है किसके चारों तरफ, हिस्टोन ऑक्टामेर के. और जब डीएनए रैप कर जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम. देयर इन द फिगर यू कैन इजीली ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम. ठीक है. नाउ हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स. अभी जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं ये 5 टाइप्स की होती है. नाउ व्हाट आर दीज टाइप्स? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. फर्स्ट वन इज H1, देन H2A, देन H2B, H3 एंड H4. सीधे तो तीन तो सीधे सीधे हो गई, H1, H3, H4. बाकी की दो कौन सी बच गई? H2A एंड H2B. नाउ वन पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर, आपको याद रखना है हिस्टोन ऑक्टामेयर जब भी बनता है तो उसमें H1 का कोई रोल नहीं. ठीक है. बाकी H2A, H2B, H3, H4 ये पेयरिंग कर लेती हैं, यानी पेयर में प्रेजेंट होती हैं. तो 4 ये हो गई, 4 इनके पेयर में हो गई, 4 एंड 4 टोटल कितनी हो गई? 8. तो इन 8 से मिलकर के बन जाता है हिस्टोन ऑक्टामेयर. ठीक है. और इसको नू बॉडी भी बोलते हैं, एन यू नू बॉडी भी बोला जाता है, या कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम भी बोला जाता है. वही अब बच गई कौन सी? पांचवी H1 वाली. ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अब देखिए एक न्यूक्लियोसोम बन गया जिसके चारों ओर डीएनए ने रैप कर लिया, ऐसे दूसरा न्यूक्लियोसोम बन गया जिसके चारों ओर डीएनए ने रैप कर लिया. अब डीएनए लिंक भी तो करेगा एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में. तो यू कैन सी इन द फिगर, तो जहाँ पर जो आपका नॉन रैपिंग या लिंकर डीएनए जिसको हम बोल सकते हैं, इस लिंकर डीएनए में कौन सी स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है? आपकी पांचवी H1. ठीक. नाउ वन न्यूक्लियोसोम कंटेन्स, अब एक न्यूक्लियोसोम, मैंने कहा ना न्यूक्लियोसोम इज रैप्ड बाय डीएनए. यानी डीएनए को हम किसके लेंथ, किसके बेसिस पे इसकी लेंथ मेजर करते हैं? नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नाइट्रोजीनियस बेस पेयर्स के बीच में. तो यानी एक न्यूक्लियोसोम जहाँ पे बनता है वहाँ पे तकरीबन 200 बेस पेयर्स किसके प्रेजेंट होते हैं? डीएनए हेलिक्स के प्रेजेंट होते हैं. नाउ न्यूक्लियोसोम्स आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द क्रोमेटिन. इस तरह से कई तरह के, अगर आप डीएनए को पूरा का पूरा डीएनए चेक करेंगे तो वो पूरा का पूरा डीएनए में कई सारे आपको, या डीएनए कंडेंस होकर आपका क्रोमेटिन बनाता है. तो आपको कई तरह के उसमें क्या दिखेंगे? कई टाइप के उसमें आपको न्यूक्लियोसोम नजर आएंगे. नाउ इफ़ यू विल ऑब्जर्व द फिगर ऑफ द क्रोमेटिन अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको यू विल ऑब्जर्व बीड ऑन द स्ट्रिंग, यानी कि आप एक मोतियों की माला सी ऑब्जर्व करेंगे. आपको मोती दिखेंगे बीच बीच में, और स्ट्रिंग दिखेंगे, फिर मोती दिखेगा, फिर स्ट्रिंग दिखेंगी. ठीक है. जो बीड्स हैं आप एज्यूम कर सकते हैं वो न्यूक्लियोसोम है, एंड जो स्ट्रिंग है वो आपका लिंकर डीएनए. ठीक है. नाउ द क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म अ सोलेनॉइड स्ट्रक्चर of 30 नैनोमीटर डायमीटर एंड फर्दर सुपर कॉइल टेंड टू फॉर्म अ लूप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर. ना अभी जो आपका डीएनए का क्रोमेटिन है ये अब कंडेंस होना स्टार्ट होता है. कंडेंसिंग कैसे होती है? एक सोलेनॉइड फॉर्म है. सोलेनॉइड आपने देखा होगा एक हॉलो ट्यूब होती है जिसके चारों ओर एक वायर रैप होता है. सिमिलरली ऐसे ही आपका 30 नैनोमीटर डायमीटर का एक आपका सोलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें इसके चारों ओर सुपर कॉइलिंग होती है आपके क्रोमेटिन की या डीएनए की, एंड ये कहलाता है क्रोमेटिन फाइबर. और क्रोमेटिन फाइबर जो है आपने देखा होगा सेल डिवीजन के टाइम पे फर्दर कंडेंस होता है और क्या बना देता है? क्रोमोसोम्स को बना देता है. नाउ ये तो था रोल हिस्टोन प्रोटीन्स का. इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं जो एडवांस लेवल पे कंट्रीब्यूट करती हैं डीएनए की पैकेजिंग में. दीज आर रिफर्ड एज NHC, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. दीज एडिशनल सेट्स ऑफ द प्रोटीन दैट कंट्रीब्यूट टू द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमेटिन एट हायर लेवल. नाउ तो यही क्रोमेटिन जब और कंडेंस होता है, हाई लेवल पे कंडेंसेशन होता है इसमें, तो ये क्या कर देता है? आपका दो तरह के रीजन्स को शो करता है, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन. नाउ व्हाट आर दीज रीजन्स? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट यू क्रोमेटिन्स आर द रीजन ऑफ द क्रोमेटिन. यानी मैंने कहा ना क्रोमेटिन जब कंडेंस होता है तो आपका क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है, आपका क्रोमोसोम बनाता है. तो जब कंडेंसन चल रहा होता है, कंडेंसेशन चल रहा होता है आपका किसका? क्रोमेटिन का, तो ये कंडेंस होकर के दो तरह के रीजन बनाता है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन. यूक्रोमेटिन वो है जो लूजली कंडेंस होता है यानी लूजली पैक्ड होता है. ठीक है. यूक्रोमेटिन आर द रीजन ऑफ द क्रोमेटिन विच आर लूजली पैक्ड. और जब इसको स्टेन करेंगे अगर न्यूक्लियस को, तो इसमें जो स्टेन का कलर है वो लाइट स्टेन आएगा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आएगा. वहीं हेट्रोक्रोमेटिन आर द रीजन्स ऑफ द क्रोमेटिन विच आर डेंसली पैक. इसी के अपोजिट जो क्रोमेटिन फाइबर बहुत ही डेंसली पैक हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन. और जब स्टेन किया जाता है, जब वेन एवर वी आर गोइंग फॉर स्टेनिंग द सेल और द न्यूक्लियस, दिस रीजन विल अटेन अ डार्क स्टेन. ठीक है. एंड यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. अब नाउ DNA is finally going to participate in the transcription process and synthesizing mRNA which is responsible for the synthesis of the protein. तो यानी यूक्रोमेटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है डीएनए का, while the हेट्रोक्रोमेटिन is transcriptionally inactive. So in this way we discussed about how the DNA is packed inside the
smaller small sized nucleus. So I think this concept is clear. Still you have any query, then you can ask me later on by personal questions. Till then, thank you and bye bye.